سیاست بہت ظالم چیز ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور یہ ماضی کر اس خوبصورتی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم اپوزیشن کا اتحاد جسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی ہی اسی میں شامل نہیں ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کا یہ سخت موقف کہ جناب وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، آئیے شاہد خاقان عباسی کو سنتے ہیں۔ دیکھیں، پی ڈی ایم کے اندر کوئی دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی۔ پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، جو اعتماد آپ نے توڑا ہے اس اعتماد کو بحال کریں۔ پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے تھا، ایک بیانیہ تھا، اگر آپ اس کے اعتماد وہاں پر قائم نہیں ہے تو پھر آپ کی پی ڈی ایم میں جگہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر پی ڈی ایم میں کسی نے واپس شامل ہونا ہے تو ان کو پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ سر، اگر پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہو جاتی ہے تو کیا آپ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے؟ پی ڈی ایم کے اندر وہ خود شامل نہیں ہو سکتے۔ پی ڈی ایم کے اعتماد، پی ڈی ایم کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑیں اور باہر نکل جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں۔ دروازے بند ہیں، دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کریں گے۔ تو سر، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وضاحت دے کے معاملے کو رفع دفع کر دینا چاہیے؟ بات بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ وضاحت طلب کی تھی، وہ کاغذ جو پھاڑے تھے ان کو جوڑ کر پڑھیں اور اس کی جو وضاحت ہم نے طلب کی تھی اس کا جواب دیں۔ بہت شکریہ۔ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں وہ اپنی ایکسپلینیشن دے۔ آ جائیے دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کیا بیان دیتی ہے، بلاول بھٹو کو سنتے ہیں۔ اس انسیڈنٹ کے بعد میرے خیال میں ہم نے نہ اے این پی نے نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ we have not at any point in time expressed any desire to return to the alliance formerly known as the Pakistan Democratic Movement. ہم بہت احترام اور عزت سے ساری سیاسی جماعتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اتنے ٹائم ساتھ مل کے سیاست کرتے ہوئے ہم نے ٹائم ساتھ گزارا ہے تو اچھا نہیں لگے گا کہ اب ہم ایک دوسرے کے بارے میں برے بھلا کہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنے سیاسی نظریہ ہے، منشور ہے، اور ان کا حق ہے کہ اپنے منشور اور نظریہ کے مطابق سیاست کرے۔ جب ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی تو ہم نے ملک اور قوم کے سامنے اسی 20 سپٹمبر کی رات کو ایک ایکشن پلان سامنے رکھا تھا، اور وہ ایکشن پلان واضح تھا، کلیئر تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا کرنے جا رہا تھا۔ ہم سب سے پہلے ایک احتجاجی مہم چلا رہے تھے جس کا کچھ آپ نے جلسہ ایٹسٹرا دیکھے، اور اس کو ایک لانگ مارچ کی شکل میں عروج پہ لے کر آنا تھا۔ دو، ہم نے پارلیمان کے اندر جو آپشنز اویلیبل ہے، نو کانفیڈنس کے، چاہے وہ وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو، اس کو ہم نے استعمال کرنے تھا۔ ہم نے استعمال تو نہیں کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جو سیاسی جماعتیں انوالو تھے، انہوں نے پورے پاکستان کو دکھایا کہ اگر عدم اعتماد آتے ہیں، اگر عدم اعتماد میں کام ہوتا ہے تو نہ بزدار رہ سکتا ہے، نہ وزیر اعظم خان صاحب رہ سکتا ہے۔ اور آخر ایک پوائنٹ استعفیٰ کا تھا۔ اب کل جو ملاقات ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی اس ملاقات میں نہیں تھا، مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی چل رہا ہے۔ آج بھی وہ استعفے نہیں دے رہے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں مل کے ان کو ٹف ٹائم دو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے we can have positive feelings and wish everybody good luck, and everybody has the right to do the politics of the opposition, to do politics in accordance with their manifesto and with their ideology. The Pakistan People's Party, the Awami National Party, believes in democracy, believes in the rule of law, believes in the rule of the constitution, believes in an economic policy that works for the many and not for the few. اور ہم اس نظریہ کے مطابق اپنا سیاست کرتے رہیں گے۔ جہاں تک کل کا ملاقات تھا، مجھے اس ملاقات کے بعد وہ کلیئرٹی نظر نہیں آیا، ان کا اسٹریٹجی کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا،
उनका प्रोग्राम का क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना दिखाएं, एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कॉन्ट्रडिक्शन ना दिखाएं, और सब मिल के इस PTIMF बजट के ख़िलाफ़ अपना वोट इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि जो भी सियासी जमात अपना नज़रिया में क्लियर है, अपनी सियासी अमल पे क्लियर है, अपना स्ट्रैटेजी पे क्लियर है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली टफ टाइम दे सकेंगे। जो सियासी जमात जानता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या पैगाम लेके जाना है, क्या प्रोग्राम लेके जाना है, तो वो ज़्यादा इख्तियार के साथ, ज़्यादा ज़ोर के साथ, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ऑपोजिशन कर सकेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ऑपोजिशन आपको करके दिखाएंगे। ये दो मौक़िफ़ आपने बहुत वाज़े तौर पर सुने। एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब हम अब दोबारा PDM में नहीं जाएंगे, दूसरे ये कहते हैं कि हम PDM में लेंगे नहीं। आखिर क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को सीधे तरीके से नहीं बल्कि घुमा फिरा कर उल्टा सीधा करके PDM से निकाल दिया गया है? PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाईजैक नज़र आती है मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि जनाब क्योंकि इन्होंने बाप की यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत ली थी सेनेटर के लिए, और सेनेटर में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, इसलिए उनको वजाहत देनी चाहिए, जबकि ये मामला नहीं है। इससे पहले ही ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे, और आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह प्रेशर डाला जा रहा था कि जनाब ये फ़ौरन इस्तीफ़े दे दें। आखिर क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जानबूझ के इस वक्त वहाँ से हटाया गया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत की इस बारीकी को उस वक्त समझने से कासिर रही। मुस्लिम लीग नून पहले ये सोच चुकी थी जनवरी के महीने में कि उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना। उसकी सबसे बड़ी वजह आइंदा इलेक्शन है। अगर ये इत्तेहाद के साथ ये दोनों साथ जाते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इससे खदशात लाक हो सकते थे, और बड़ी बारीकी से और बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलहदा किया गया। आप सुन रहे हैं मस्त FM 103 अनीस मंसूरी के साथ। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसे अब पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के बगैर चलाया जा रहा है, उसमें गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलानात किए गए कि अब वो जलसे करेंगी, और जलसों के साथ साथ अवामी ताकत का मुजाहरा भी करेगी। अवामी ताकत के मुजाहरे के साथ साथ लगता यूँ है कि वो मौजूदा हुकूमत को पूरे 5 साल देना चाहती है। जो मुजाहरों के ऐलानात हुए उसमें बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर अब 2 अलग अलग अपोजिशन काम करेगी। क्या ये 2 अलग अलग अपोजिशन जिसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ बड़े ही एतमाद के साथ ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को असेंबलियों के अंदर अपने साथ ले जा सकेगी, क्या ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं मुमकिन हो सकेगा, ये बड़ा सवाल है। PDM ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और आवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया जाएगा, और उसके बाद 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा, और जब हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाएंगे तो इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा, जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के मौज़ूआत शामिल होंगे, और उस पर पाकिस्तानी अवाम की यकजहती का भरपूर इजहार होगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अहम सवाल ये पूछा गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब की क्या राय है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में शामिल होगी, इन जलसों में शामिल होगी या नहीं होगी? तो मरियम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया, सुन लीजिए। हमने इस हवाले से कोई गौर व खौज नहीं किया। मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि PDM मज़ीद इजलासों में
उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सकें। जो सेमिनार होगा उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद होगी? ये चीज़ हमने पार्लियामेंट के हवाले कर दी है और जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है अपनी जिम्मेदारी को मरियम साहब आज नवाज शरीफ के इजलास में शरीफ हुए, क्या बताना पसंद करेंगे कि आज उन्होंने क्या कहा इजलास में, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के हवाले से उनका क्या मौका? साहब आप बताना पसंद फरमाएंगे? जी शुक्रिया। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वही मौक़िफ़ आज मियाँ साहब का भी था, और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। शुक्रिया। मौलाना साहब कल शहबाज साहब ने आपको एक तजवीज़ दी है कि नया इस्लामिक मॉडल होना चाहिए, पूरी कौम के लिए तमाम इस्तेमाल की बता रही है, क्या आप शहबाज साहब इस बात से इस्तेमाल करते हैं कि ये वक्त है कि सब कुछ इकट्ठा किया जाए? शहबाज साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं और वो PDM का हिस्सा हैं। उन्होंने कल भी मेरे घर पर वाज़ेह तौर पर कहा कि जो भी फैसले होंगे PDM के प्लेटफार्म से होंगे, मुशावरत से होंगे और इत्तेफाक राय से होंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले भी अवामी रास्ता मुहिम हुई। अब इस सारी गुफ्तगू से आपको इस बात का बहुत वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा हो गया होगा कि अपोजिशन तकसीम हो चुकी है। इस तकसीम का यकीनी तौर पर फ़ायदा तहरीक इंसाफ को तो होगा ही होगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुकसान में तो नहीं रहेगी, लेकिन अलबत्ता डील के ज़रिए सिंध के बहुत सारे मामलात को अपने हाथ में अगले इलेक्शन में भी रखने में कामयाब हो जाएगी। अब आगे क्या होगा इस पर हमारी गुफ्तगू जारी होगी और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद चंद माहिरीन भी हमारे साथ शामिल होंगे और उसके साथ साथ एक अहम रिपोर्ट आज आपके सामने पेश करेंगे सिंध में हायर एजुकेशन कमीशन के साथ क्या हो रहा है। आप सुनते रहें मस्त FM 103 अनीस मंसूरी के साथ।